are discussing about classification of polymers. We discussed about there are various ways by which we can classify polymers. First was on the base we have simply homopolymer and copolymer. Then on the basis of molecular structure we classify polymers as addition polymer. On the basis of polymerization, addition polymer, and second one is condensation polymer. Then there was other classification on the basis of source. We classify polymers as natural polymers, semi-synthetic polymers, and synthetic polymers. Today we will discuss about on the basis of chemical forces. What are the types of polymers? Chemical forces. As we already know that the polymers are formed by interactive interactions or chemical interaction between various monomers. So there are intermolecular forces. Intermolecular forces which led polymers to be formed. हमें मोनोमर्स के भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं, हम मोनोमर्स में भी बोल सकते हैं कि देयर आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और केमिकल फोर्सेस. बट जो मोनोमर्स होते हैं उनका मास बहुत कम होता है. दूसरा जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है. दे हैव अ बिगर लार्जर चेन्स. सो उनमें जो इंटरेक्शंस है वो बहुत ज्यादा होगी. ठीक है. सो on there are various forces like हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस होंगे. हो सकते हैं हमारे पास वैन डर वाल फोर्सेस होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, there can be dipole interactions. So on the basis of these interactions we classify polymers as, कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है आपको समझ में आ रहा है सब कुछ. ठीक है. On the basis of this we classify polymers as, first आपका आ जाएगा elastomers. In this type of polymer the interactive forces or the chemical forces are very weak. And these interactions are mostly van der Waals forces of attraction. जो van der Waals force of attraction है इसके बुनियाद पे जो ये पॉलीमर्स होते हैं ये लॉन्ग वायर्स में होते हैं ऐसे. दे हैव amorphous like structure like this. They are long chain wires, irregular wires. उसके वजह से ये जो पॉलीमर्स होते हैं दे आर वेरी इलास्टिक. अगर हम एक काम करेंगे इनको खींचेंगे ये अपने से ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा दूर चले जाएंगे. इलास्टिक इतने स्ट्रेच हो जाएंगे. अगर इनको हम पुल करेंगे ऐसे तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे. बट देयर आर किंक्स आल्सो लाइक दिस. देयर आर साइड ब्रांच सिंपली फ्यू साइड वीक फोर्सेस लाइक दिस. उसकी वजह से जब हम एक स्ट्रेच करेंगे एक पॉलीमर को, अगर हम इसको छोड़ेंगे ये रिटर्न अपने पोजीशन पे आता है. दिस इज बिकॉज ऑफ दीज किंक्स, दीज वीक फोर्सेस, साइड चेन्स. बट जो लॉन्ग वायर्स होते हैं उसकी वजह से ये बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं. सो आपको समझ में आया. इसकी वजह से स्ट्रेच होते हैं एंड इसकी वजह से अपनी पोजीशन पे वापस अगर हम छोड़ देंगे वो फोर्स तो ये अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं. तो these are known as elastomers. What are the examples of elastomers? एग्जाम्पल कौन कौन से elastomers में है हमारे elastomers में. ये एग्जाम्पल होगी नेचुरल रबर जो होता है, vulcanized rubber, bunna and all
और SBr कोपॉलीमर of 75% butadiene plus 25% styrene। इसमें और एक एग्जांपल आ जाएगी हाईली वोलेकनाइज्ड रबर। हाईली वोलेकनाइज्ड रबर में क्या होता है, उसमें परसेंटेज ब्यूटाडाइन की होती है, वो होती है 20 से 35% तक in case of highly vulcanized rubber. So this was all about elastomers. They have weak van der Waals forces of attraction which makes them the coily type जो होंगे, फिर ये elastic होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे, अपने से 10 गुना दूर जा सकते हैं। लेकिन अगर हम वो फोर्स छोड़ देते, ये रिटर्न अपने ग्राउंड स्टेट अपने पोजीशन पे वापस आते हैं। सेकंड वन इज फाइबर्स। They have strong forces of attractions। जो इंटरेक्शंस इसमें होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो मोस्टली हमारे होते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड डाइपोल इंटरेक्शन। अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, हमें पता है if we see nylon 66 it contains polyamides। So in this case we have hydrogen bonding in case of nylon 66। However, if we have here we have hydrogen bonding, however if we have polyesters like Orlan, Teflon or acrylamide, or we have polyacrylonitrile, there is strong dipole interaction, strong dipole interaction। It means that dipole is either created of, dipole किस चीज का बना होता है, वो होता है हमारे polar molecule like CO and CN। So in case of fibers we have strong dipole interactions or strong hydrogen bonding which let this polymer to have a strong force of attraction। तो ये बहुत ज्यादा strong होता है, बहुत ज्यादा rigid होता है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे तीसरा जो है C, थर्मोप्लास्ट्स। थर्मोप्लास्ट में क्या होता है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स। अब इनमें क्या होता है, ऑन हीटिंग ब्रिटल, ऑन हीटिंग दे सॉफ्टन अप। ये सॉफ्ट होते हैं, अगर हम इनको हीट करेंगे ये सॉफ्ट अप होते हैं। लेकिन अगर हम, आपको समझ में आ रहा है, अगर हम एक पॉलीमर है हमारा ब्रिटल है, अगर हम इसको हीट करते हैं सॉफ्ट होता है। लेकिन अगर हम सॉफ्ट जो पॉलीमर होता है अगर इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं कूलिंग के लिए, ये फिर से सॉलिड फॉर्म में होता है, ये फिर से ऑन कूलिंग इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप और वर्केबल शेप, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं ऑन कूलिंग। So this polymer is very important in the on daily basis। अगर हमारे पास कोई ऐसा कप है कि हमने उसको हीट किया, वो सेमी फ्लूइड या फ्लूइड में चेंज हो गया, फिर हम अगर ग्राउंड स्टेट ऐसे ही रखेंगे उसको कूलिंग स्टेट में, तो वो अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आता है। इसमें हमारे एग्जांपल्स है पॉलीथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, PVC, polyvinyl chloride। Okay, these are the examples of thermoplasts। इसके बाद है हमारा जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है प्लास्टिसाइजर्स।
प्लास्टिसाइजर्स में क्या प्रॉब्लम है? प्लास्टिसाइजर्स आर कंपाउंड्स व्हिच कैन नॉट बी सॉफ्टनड बाय हीटिंग। हीटिंग से हम इसको सॉफ्ट नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, आर गेटिंग माय पॉइंट, हीटिंग से उसको हम सॉफ्ट नहीं करते, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें डालते हैं, उसकी वजह से ये सॉफ्ट होते हैं। लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी हैव डाई अल्काइल थैलेट्स हम डालते हैं, PTHALATES। लाइक अगर हम देखेंगे डाई एन ब्यूटाइल थैलाइड और डाई एन ऑक्टाइल थैलाइड। सिंपल है, ये हम नॉर्मल जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड डालते हैं जिसकी वजह से ये सॉफ्टन होते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लास्टिसाइजर्स। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे, जो पीवीसी होता है, पीवीसी बहुत ज्यादा ब्रिटल होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑन एडिंग डाई एन ब्यूटाइल थैलेट, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट प्लास्टिसाइजर्स। जो लास्ट वाला हमारा है वो है ई थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या है, ये एक होता है सेमी सॉलिड और सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये चेंज होता है किस वाले, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन मसला ये होता है, जो सॉलिड फॉर्म है उसको हम वर्केबल शेप, अगर हमारे पास सेमी फ्लूइड है लाइक दिस, ये ओरिजिनल फॉर्म है, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। लेकिन मसला ये है कि हम इसको वापस अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं भेज सकते हैं। जैसे हमारा थर्मोसेटिंग है, थर्मोसेटिंग में क्या होता है, हमने सॉलिड को लिक्विड में सॉफ्टन किया, लेकिन अगर हम उसको कूलिंग पे रखेंगे तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आता है। लेकिन हियर द केस इज टोटली डिफरेंट। if we heat semi-fluid substance, it will change into solid form, but later on cannot be converted back to the semi-fluid structure। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास पॉलीमर होता है, ऐसे सिंपल लॉन्ग चेन्स होते हैं, अगर हम इसको हीट करते हैं तो इसमें किंक्स आते हैं, जिसकी वजह से ये सॉलिड होता है, जिसको हम वापस अपने ओरिजिनल शेप में चेंज नहीं करते हैं। सो इन कंक्लूजन we have 5 types of polymers on the basis of chemical forces। फर्स्ट था हमारा elastomers which have weak interactions like van der Waals force of attraction। second one is fibers, they have strong force of attraction like hydrogen bonding and dipole-dipole interactions। third one is thermosetting polymers, thermoplasts, they become softened on heating and later can be converted back to its original shape। and fourth one is plasticizers which cannot be cooled up, which cannot be softened by normal heating, we add organic compounds, we call them plasticizer। and last one is thermosetting polymers which once changed to a solid form cannot be returned back to its original form। thank you for your cooperation।